Good evening to all. So, in this course, Design of Steel Structure, we are moving to the our next unit, next chapter, that is Design of the Flexural Member or Design of the Beam. So, this is our fourth unit basically. इसमें हम डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ने जा रहे हैं और बीम में लैटरली सपोर्टेड बीम पढ़ेंगे और लैटरली अनसपोर्टेड बीम पढ़ेंगे, राइट? तो उसमें फिर दो केस आते हैं कि लो शेयर केस होता है, एक हाई शेयर केस होता है, दैट वी विल सी लेटर. After this, in the fifth unit, the important topic that topic you must go through, that is plate girder. I will try to cover that topic also, but the time is limited here, and otherwise I will provide some notes of the plate girder design. And in future, if you have the doubt, you can ask me, right? So fourth unit शुरू करते हैं, that is flexural member, right? तो थोड़ा सा कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, डायरेक्टली वील मूव टू द डिजाइन. एज यू नो द वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम नाउ. सो फ्लेक्सिबल मेंबर मतलब बीम, राइट? सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बीम? Beam structure member subjected to transverse load which is perpendicular to the axis, and member produce shear force and the bending moment. तो इस तरह से कोई भी मेंबर है जिसमें लोड जो आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रांसवर्स. Load will be the transverse or perpendicular to the axis. This is the axis of beam, this side, and load will be the perpendicular to this x-axis, means like this. If this things happens, you can say this member is beam. It will going to bend. Okay. In a steel structure, beam may fail due to local buckling, torsional buckling, along with the shear force and bending moment. So, in the normal thing, right, normal RCC beam, the beam, you will check the beam in basically shear force and bending moment, and some case of the torsion also. But here, the buckling is the main criterion, as we know that we are generally use I section. Let us say this is your I section. In this I section, we'll draw little bigger. This is your I section, and in this I section, this is your top flange, this is your bottom flange, and this is middle portion is your web, right? So this web is basically thinner. Why we made this thinner? Why we made this lesser width as compared to the flange? Because of the stress diagram, right? Stress diagram is something like this. If this is the depth of the cross section, stresses are more in the farthest edges, and it is going to decrease towards the center of the cross section. So what we can observe from this stress diagram, स्ट्रेसेस जो हैं वो आउटर फाइबर पर ज़्यादा हैं और ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही हैं, सेंटर पर बिल्कुल ज़ीरो हैं, फिर फर्दर इंक्रीज हो रही हैं और ये मैक्सिमम हो जा रही है लोअर मोस्ट फाइबर पर. सो जब ये देखा तो हमने देखा कि जो है स्ट्रेसेस टॉप और बॉटम पर मैक्सिमम है. सो हमने यहाँ से जो पोर्शन है ये रिमूव कर दिया, एंड देन वी मेड दिस आई सेक्शन की जो है सेंटर में बेंडिंग मोमेंट एडजस्ट करने के लिए इतना एक्स्ट्रा मटेरियल जरूरत है ही नहीं. देन वी विल कट दिस काइंड ऑफ पोर्शन, and we are going to use this I section as in a steel structure, as a steel beam perfectly. Okay, so these are some kind of small terms related to the beam, like joist, like rafter, like gird. It's all are the kind of a beam which is generally we use in the steel structure. Please go through these terms in the book, from the book, the S.K. Duggal book, Bhavi Katti, or the N. Subramaniam, right? Now coming to the general mode of failure of the beam. मोड ऑफ द फेलियर, बीम कैसे कैसे फेल हो सकता है. तो बीम हम कहेंगे बेंडिंग में फेल हो रहा है. ओके, एक्सेसिव बेंडिंग हो रही है उसकी ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंजेस और फ्रैक्चर ऑफ द टेंशन फ्लेंजेस. सी,
This is your I section. Top and bottom flange basically bending movement resist करती हैं. Please note down this point. टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करती हैं. नोट कर लिया आपने. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज जो वेब है हमारा, जो रिब या वेब है, वो आपका शेयर रजिस्ट करता है. दैट विल रजिस्ट शेयर ओनली. क्योंकि आप जब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो, तो अभी हमने बनाया भी था, बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह से वेरी करती हैं अक्रॉस दी डेप्थ, एंड शेयर स्ट्रेस विल वेरी लाइक दिस अक्रॉस द डेप्थ. तो शेयर जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है? सेंटर में ज़्यादा है और एंड्स पे कम है. बट बेंडिंग स्ट्रेसेस बेंडिंग मोमेंट की वजह से सेंटर पर कम है और एजेस पे ज़्यादा है. तो इससे ये पता चलता है कि जो फ्लेंजेस हैं टॉप और बॉटम में, ये रजिस्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट, और जो वेब है आपका, इट विल रजिस्ट शेयर, राइट. ओके. तो सेकंड वन इज द शेयर ड्यू टू द बकलिंग ऑफ वेब. अब इस वेब में क्या आती है? बकलिंग आती है. बेसिकली दिस इज योर आई सेक्शन, लेट अस से, and this web of this I section may may buckle like this. It will bend like this. If we draw another one to understand the how buckling will look like, it will look like this. ठीक है. तो आप कहेंगे कि ये जो है बीम आई सेक्शन आपका बकल कर गया. ठीक है, इस तरह से. सो दिस इज ड्यू टू दी बकलिंग. अगर आपका वेब की डेप्थ ज़्यादा है, and if the depth of your web is small, then you can say the web may be subjected to pressing also. Third modes of failure which can occur, that is the deflection. Deflection basically is the kind of a serviceability criteria in the limit state method. डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बीम्स के लिए आईएस कोड ने कुछ परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यूज गिवन है कि इस पर्टिकुलर बीम के लिए इतना डिफ्लेक्शन अलाउेबल है. सो फॉर यू इन योर क्वेश्चन, फॉर योर गिवन प्रॉब्लम, यू हैव टू चेक उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है. लेट अस से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज डेल्टा. दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा should be lesser than allowable deflection which is given in the IS code. ठीक है, और वो कहाँ given है? I have written here already. That thing is given in the deflection limits given in the table number 6, which is on page number 31. तो पेज नंबर 31 of IS code IS 800 2007 में आप जाएंगे, table number 6, you will find the deflection values. So the deflection is allowable deflection, that is maximum deflection, and that should be less than our deflection of the beam. So सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे. तो डिफ्लेक्शन बेसिकली इट कम्स अंडर द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया. मतलब बीम जो है वो हल्का सा बेंड हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो चुका है, बट वो अभी कोलैप्स नहीं हुआ है. वो आपके हाउस के जो मेंबर्स हैं उनसे वो सेपरेट नहीं हुआ है, बट इट bends or it deflect like this. So the client or you or us, those who are living in the beneath of this structure or living in the room, we people can have fear, right? Fear can have, definitely हमको fear होगा कि ये बीम हमारे ऊपर गिर सकता है, it may collapse. Okay. So this kind of fear in the mind of the client will create the thing that this structure is no more serviceable in its design life. तो हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं है. कोलैप्स नहीं हुआ है बट अपनी सर्विस अब ठीक से नहीं दे रहा है. क्यों बोल रहे हैं सर? बिकॉज उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो चुका है. ठीक. एक और एक कंसेप्चुअल टॉपिक आता है बेसिकली यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बीम. इसका मतलब ऐसे समझिए कि कुछ इसका मतलब स्ट्रेस डायग्राम से रिलेटेड ही है. लेट अस सपोज, देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया कैंटिलीवर बीम having the UDL subjected to UDL, and this is the bending moment diagram like this, 2 degree, and this is the triangular is the SFD shear force diagram. So we can see here in such beams that shear force as well as bending moment are very lesser or zero at the end, right end. यहाँ पर जो है ये बहुत कम है.
एंड नियर टू दिस सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है एंड shear फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम है. So we can save our material, we can save cross section of the beam from this right side, right? So we can have also cross section of the beam like this. So इस concept को कहते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, कि स्ट्रेंथ आपने यूनिफॉर्म कर दी, जहां पर आपका लोड कम था वहां पे आपने क्रॉस सेक्शन कम प्रोवाइड करा, जहां पे आपका स्ट्रेस ज्यादा आ रहे थे लोड की वजह से वहां पे आपने क्रॉस सेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करा. तो अननेसेसरी आप प्रोवाइड जब नहीं करते हैं तो इट मे कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, राइट. ये इस तरह से भी वेब में कटिंग की जाती है, जैसे ये आई सेक्शन ही है एक तरह से. दिस इज द साइड व्यू एंड विच आई एम ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. सो ये जो टॉप लाइन दिख रही है इट इज कॉल्ड टॉप फ्लैंज, बॉटम लाइन ये जो है दिस इज कॉल्ड बॉटम फ्लैंज, और ये जो बीच में ये प्लेट आपको दिख रही है दिस इज वेब. अब वेब में इसकी डेप्थ हम बढ़ाना चाहें तो कि बेंडिंग रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए. सो व्हाट विल डू, वी कैन कट दिस वेब लाइक दिस and we can slide this web upper portion here and lower portion right side, upper portion left side. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ओके, काइंड ऑफ हेक्सागन गैप. तो दिस गैप, ये गैप एक तरह का, दिस गैप इज figure of the hexagon. So why we are gapping the stress, तो मेनली आउटर पोर्शन ही रजिस्ट करता है. तो हम ये इस तरह से कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, यू नो द BD क्यूब बेटर, राइट. So by increasing the depth, we are increasing the section modulus, or we are increasing the moment of inertia. Hence, we are increasing the bending resistance, right? Flexural resistance. This is the another point. This is a lateral torsional buckling. Means in top view, if you have this kind of a beam, okay. So top में से तो ऐसे दिखेगा, फ्लैंज आपको दिख रहा होगा, ठीक है. इसका क्रॉस सेक्शन will look like this. Okay, so lateral torsion buckling means such you have some kind of a different loading, eccentric loading, or some rotational movements. Due to this flange line, this flanges of the beam, which you can see from the top, this will bend or buckle like this. Let us say I am drawing another diagram, it will bend like this. So it is how it look like for lateral torsion buckling. ठीक है. दिस इज द लोकल बकलिंग. लोकल बकलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका ये फ्लैंजेस चल रहे हैं, ये फ्लैंज बॉटम फ्लैंजेस है, ये आपका वेब चल रहा है, तो वेब आपका कंप्लीट बकल नहीं हुआ है, बस एक पर्टिकुलर लोकेशन से जहाँ पर या तो सब्जेक्टेड लोडिंग आपकी है, पॉइंट लोडिंग है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हो रहा है. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हो रहा है वहां पर ही वेब क्या करेगा, बकल कर जाएगा. Means whole web, yeah, whole length of the web will not buckle. The buckling may picturize in the some limited area, to the some limited area. Okay. Another one is the, for that we provide, you can see here in another diagram right side, we provide some kind of this bearing plate of width of small b. This bearing plate, what it does, the bearing plate will disperse the load. It will spread the load like this at 45 degree, and due to this this stress concentration will not occur. Okay, तो ये resist करता है stress concentration को basically. Crushing of web भी crush हो सकता है, मैंने बताया था आपको. These are some kind of section, like this is the rectangular section तो हम पढ़ते हैं, ये normal है, ये compact है like elastic, फिर ये सेमी कॉम्पैक्ट है लाइक इलास्टोप्लास्टिक, मैंने बताया था आपको शायद पहले. एंड दिस इज द फुली प्लास्टिक सेक्शन. मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग द लोड आफ्टर दिस आल्सो, तो टॉप फाइबर तो मैक्सिमम लोड ले चुके हैं, कुछ और फाइबर भी नीचे के लोड ले चुके हैं. अभी जो फाइबर बचे थे, ये आपका ट्रायंगुलर पोर्शन है, दीज फाइबर कैन टेक मोर स्ट्रेसेस. तो यहाँ पे देखा कि सारे के सारे फाइबर जो हैं टॉप एज वेल एज बॉटम मैक्सिमम स्ट्रेसेस बेयर कर रहे हैं. So we can say that such sections are now fully plastic,
और जो मोमेंट जनरेट हो रहा है दैट इज फुली प्लास्टिक मोमेंट, नॉट द यील्ड। ओके, सो to use the maximum capacity of the beam, generally we prefer the प्लास्टिक सेक्शन। तो हम प्लास्टिक सेक्शन ही प्रेफर करते हैं, वही हम डिजाइन सोच के करते हैं। तो एज पर दी आईएस कोड हम कैसे चेक करेंगे हमारा सेक्शन प्लास्टिक है या नहीं है, उसका इंश्योर कैसे करेंगे? तो दीज थिंग गिवन ऑन द पेज नंबर 18 टेबल नंबर 2, आई एम मेंशनिंग द पेज एंड टेबल हियर so that आपको confusion ना हो। तो please go through this IS code and go through this table number 2 on page number 18। you will get some table एक आपको बड़ी सी मिलेगी, उसमें आप देखोगे कि प्लास्टिक सेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, लाइक बी बाई टी एफ शुड बी लेस देन 9.4 एप्सिलॉन एंड डी बाई टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन 84 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन एक कांस्टेंट की तरह का होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एफ आई, इट विल बी अंडर रूट 250 ओवर एफ आई। तो ये एक एफ आई 250 के हिसाब से बना है बेसिकली, आप देखोगे मीन्स एफ आई अगर आपका 250 मेगा पास्कल ही है तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 over 250, right? Under root 1, so epsilon will be 1 basically for the Fi 250। so ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है कि कोई भी आपका आपको सेक्शन गिवन है, उसका विड्थ बाय टीएफ मींस थिकनेस ऑफ लाइन, इट शुड बी लेस देन 9.4 एप्सिलॉन एंड द डी इज द डेप्थ ऑफ दैट बीम ओवर टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ वेब, यानी this width of web must be less than the 84 epsilon। so this is for the plastic section check, and this is how we can classify the steel beams in steel structure that is laterally supported or laterally unsupported। Unsupported is bit not that much important for competitive point of view also, so due to the limitation of time I will not discuss here, I will provide the notes। We will discuss here the laterally supported beam। In that, first case is low shear and the second case is the high shear। Low shear उसको बोलते हैं when the shear force is less than the 0.6 times of design shear force, and high shear will be definitely the shear force when comes to higher or to the 0.6 times of the design shear force। तो ये आपका कंपेयर होता है बेसिकली जो भी शेयर आपका शेयर फोर्स आ रहा है वो डिजाइन शेयर फोर्स के 60% से कम है तो दैट विल बी लो शेयर केस, और 60% से ज्यादा है तो दैट विल बी high shear case। So directly we are moving to the steps for the laterally supported beam, and we are doing design for the low shear case। तो laterally supported beam में हम देख रहे हैं low shear part। तो this design given on the page number 53 IS code, please go through this design which is given on the page number 53 of IS code। so you can see that on IS code it is given clearly, it is mentioned clearly that V should be less than 0.6 of VD, right? And how we can calculate this MD design moment? Another is the design moment MD। so MD is beta B ZP over Fy over gamma m naught। Formula for the calculation of design bending moment is beta B ZP Fy over gamma m naught। ये निकालने के बाद आपको इसमें चेक भी करना है कि if your beam is simply supported then these thing should be less than 1.2 ZE Fy over gamma m naught, and if your beam is cantilever this thing should be less than 1.5 ZE Fy upon gamma m naught। ZE is the elastic section modulus which is given on the steel table, ZP is the plastic section modulus, Fy yield stress, gamma m naught is 1.1, beta b a constant है but this constant is a factor of, it depends upon the type of section, right? If your section is plastic and compact, okay, then this beta b is 1, okay। and as I told you earlier already that for design purpose we prefer generally plastic section, so if you prefer the generally plastic section the beta b will be 1 definitely। so beta b will be ZE over ZP, it is a ratio of the section modulus, elastic section modulus to the plastic section modulus। this thing will govern for the semi-compact section, right? And another case, as we already told, that if V is greater than 0.6 of VD, it will be the high shear case,
ओके, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे ऊपर वाला जो आपका लो शेयर केस होगा, ये आपको समझ में आ गया। एमडी आप यहाँ से डिजाइन मूवमेंट निकाल लोगे, और वीडी आपको बताएंगे कैसे निकालना है अभी न्यूमेरिकल में, ठीक है। डिजाइन शेयर फोर्स, V is the shear force external load. So V will given in the question, VD you will calculate. Okay. तो another thing is the high shear case. इसमें एक थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं इसका। हाई शेयर केस का डिजाइन आपको गिवन है पेज नंबर 70 पे। यहाँ पर MD जो डिजाइन मोमेंट है उसको डिनोट करा जाता है बेसिकली MDV से। MDV here is the design moment capacity under the high shear case। वहां पर MD से करते थे, कहां पर लो शेयर केस में, और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को, उसी डिजाइन मोमेंट को नया नाम दे दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपने MDV, क्योंकि दो तरह के मूवमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली, दो तीन तरह के, क्योंकि हाई शेयर केस है। ओके, so design moment capacity under the high shear is your MDV। So what is the MDV? MDV is the MD minus beta ब्रैकेट में MD माइनस MFT। सो आपको MDV निकालने के लिए MD पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, एंड MFD पता होना चाहिए। एंड दिस MDV शुड बी लेस देन अगेन 1.2 ZeFi और गामा नॉट। वहां पर बीटा डायरेक्टली हम कैसे ले रहे थे, प्लास्टिक और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 1 ले रहे थे, कॉम्पैक्ट के लिए, है ना, बाकी के लिए हम जेड ई अपन जेड पे ले रहे थे। यहाँ पर बीटा थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर बीटा है ट्वाइस ऑफ V अपॉन BD माइनस 1 ओवर इसका होल स्क्वायर, ठीक। So what is the VD? VD is the design shear strength as governed by the web in yielding. Web का yielding में जो भी stress होगा, design strength, that will be the VD. And that strength is definitely the area into the stress. So area is FV या FW, that is the shear stress in web. This is the stress in web into the area, and area web का डिनोट कर रहे हैं हम, कहीं AW से डिनोट करते हैं बुक में, कहीं AV से, तो यहाँ पर हम AV से डिनोट कर रहे हैं, तो AV is the area of web। Okay, so area of web for the rolled section it is D into TW, and for the welded or built up section it is for the small d into TW। तो let us say this is the, you can say built up section। ये जो I section है पे ड्रॉ करा है, ये edging section है, कट edged है इसकी। इसमें कि कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप एरिया निकालेंगे वेब का, वो आप फ्लैंज की डेप्थ को आप हटा दोगे, ठीक है। मतलब स्मॉल d into TW लिखा है ना, तो स्मॉल d मतलब सिर्फ वेब की डेप्थ, ओके, इनटू TW यानी थिकनेस ऑफ वेब। बट फॉर द रोल्ड सेक्शन, ये कह रहे हैं फॉर द रोल्ड सेक्शन, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई डायग्राम आप देख पा रहे हो, फॉर द रोल्ड सेक्शन इसकी डेप्थ पूरी की पूरी कंसेप्चुअलाइज वे में ली जाती है कैपिटल D, क्योंकि रोल्ड है तो दिस होल थिंग विल टेक पार्ट इन द डिजाइन शेयर। तो इस तरह से हम लेते हैं। व्हाट इज द MFD? MFD is the plastic design strength of area cross section excluding the shear area। यहाँ पे ध्यान दीजिए, excluding the shear area। MFD, F डिनोट कर रहा है फ्लैंज का मोमेंट। फ्लैंज का मोमेंट मतलब आप जो है वेब वाला निकाल दीजिए, वेब वाला एक्सक्लूड करना है, हमें शेयर वाला एक्सक्लूड करना है। तो MFD कैसे निकालना है? ZFD इंटू FI ओवर 1.1 यानी गामा नॉट, ठीक है। तो मोमेंट वैसे निकाल रहे हैं सेम लाइक सेक्शन मॉडुलस इनटू स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, बट सेक्शन मॉड MFD है तो यहाँ पे इसको इसका नया सेक्शन मॉडुलस नाम दे दिया, दैट इज ZFD। एंड ZFD क्या है? ZFD क्या है? सेक्शन मॉडुलस फॉर फ्लैंज ओनली। ZFD क्या है? टोटल Z यानी ZPZ, टोटल Z सेक्शन मॉडुलस माइनस द AW इनटू दी बेसिकली दिस विल बी द YW। सो सेक्शन मॉडुलस आपको पता है I/Y होता है ना। सो इट इज A1 बार इंटू Y1 बार, आपने सोम में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, राइट। तो ZPZ इन टोटल सेक्शन मॉडुलस में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? AW इंटू YW, एरिया ऑफ द वेब एंड द डेप्थ ऑफ द वेब। तो दिस विल गिव यू दी ZFD, सेक्शन मॉडुलस फॉर दी फ्लैंज ओनली। गॉट इट? डिजाइन शेयर कैसे कैलकुलेट करना है? डिजाइन शेयर V N नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ एंड VD, यू नो दैट, है ना। तो VD बेसिकली निकालेंगे आप AV एरिया इंटू FIW एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब डिवाइड बाय √3, और इसी में अगर आप 1.1 नीचे और डिवाइड कर दें तो इट विल गिव यू द VD, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। ओके, सो इन न्यूमेरिकल वी विल सी हाउ वी कैलकुलेट लाइक फॉर द वेब बकलिंग वी एक और पॉइंट आप देख लिया थ्योरी का, एक दो पॉइंट और देखते हैं, फिर देन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल।
सी इन द क्वेश्चन, ये पी लोड जब लग रहा है, मैंने बताया था स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हम एक बेयरिंग प्लेट लगा देते हैं। ये आपने जो है बेयरिंग प्लेट स्मॉल बी विड्थ की आपने जो है प्रोवाइड कर दी लेटर से। अब ये बेयरिंग प्लेट क्या कर रही है, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस लोड को डिस्पर्स कर रही है, स्प्रेड कर रही है। तो इस तरह से इसने डिस्पर्स कर दिया। अब हमें जो बकलिंग के लिए विड्थ लेनी है वो नीचे वाली लेंगे, टोटल एरिया, टोटल विड्थ लेंगे, दैट इज कैपिटल बी। तो व्हाट विल बी द कैपिटल बी? कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी प्लस ट्वाइस ऑफ n1। मतलब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल्स को लेटर से, ये तो स्मॉल बी हो गया बीच का, बट ये जो डिस्पर्जन कितना हुआ, ये ये आपको देखना है। दिस विल, इट इज टेकन एट मिड डेप्थ, ठीक है। तो प्लीज ये कट कर दीजिए, ये नहीं होता, एट मिड डेप्थ हम लेते हैं। बकलिंग का मतलब क्या होता है, वेब बकलिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो वेब बकलिंग मतलब ये आई सेक्शन है आपका, ये इसका जो वेब है, ये वर्टिकल जो है ये ऐसे बेंड हो जाए, मतलब आई सेक्शन आपका है, इट विल, इफ इट विल गो लाइक दिस, तो आप बोलोगे ये बकल हो गया। तो सेंटर में बकलिंग मैक्सिमम होगी, दैट्स व्हाई वी आर एनालाइजिंग इन दी सेंटर, ओके। तो सेंटर में जब एनालाइज कर रहे हैं तो हम इसको सेंटर में लेंगे, तो सेंटर में हम देखते हैं तो स्मॉल बी प्लस एन वन इंटू एन वन। और व्हाट इज दिस एन वन? 45 डिग्री पे डिस्पर्जन कर रहे हैं, तो जितनी भी हाफ डेप्थ है उतना ही ये होगा। भाई जितना ये है उतना ही ये होगा, वर्टिकल उतना ही बेस होगा, उतना वर्टिकल है उतना ही बेस होगा। वर्टिकल कितना है, डेप्थ का बाई टू, तो ये डी बाई टू। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाई कैपिटल बी बराबर क्या होगा, स्मॉल बी प्लस ट्वाइस इंटू डी बाई टू प्लस डी बाई टू, वॉट इट। तो यहाँ से आपका बी निकल गया, टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकल गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ सी डी से, बकलिंग बकलिंग स्ट्रेंथ से, बकलिंग स्ट्रेस से। तो एफ सी डी कंप्रेशन मेंबर में जैसा हमने देखा था वैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, 9C टेबल से। इट विल गिव यू एफ डब्ल्यू बी, एफ डब्ल्यू बी इज द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब। एफ सी डी बताया था, वी नो दैट, है ना, लैम्डा निकालते थे हम। तो लैम्डा क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, तो एल ई अपॉन आर वाई लेटर से। एल ई यहाँ पर जो है आप देखेंगे बकलिंग किस में हो रही है, वेब में हो रही है ना, तो वेब की लेंथ लेंगे नहीं, वेब की डेप्थ लेंगे। तो जनरली जो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं वो हम 0.7 ऑफ दिस डेप्थ ऑफ वेब लेते हैं, स्मॉल डी, डिवाइड बाय दी रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, आई बाई ए होता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया आई बाई ए लेट से। तो और सॉल्व करेंगे, 0.7 डी ओवर आई को रिप्लेस कर देंगे बी टी क्यूब बाई 12, है ना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो बी टी क्यूब बाई 12, राइट। तो ये जो सॉल्व आउट करा, एरिया को बी इंटू टी रखा, है ना, टी यहाँ पर क्या है, बेसिकली टी इज द थिकनेस ऑफ वेब है, ठीक है ना। ये जो सॉल्व आउट करा, कट करा, तो इट इज कमिंग लाइक 2.5 डी बाई टी। डी किसकी, वेब की, टी किसकी, थिकनेस ऑफ वेब, डी इज द डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। ये लैम्डा हमारे पास होगा बेसिकली। और बकलिंग क्लास हमें पता ही है, बिल्टअप सेक्शन के लिए, हर सेक्शन के लिए सी क्लास होती है। तो वी विल गो टू द टेबल नंबर 9C, और फॉर द दिस लैम्डा वी विल गेट द एफसीडी वैल्यू, गॉट इट। वेब बकलिंग तो हो गया, नेक्स्ट थिंग इज द वेब क्रिपलिंग। क्रिपलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा। क्रिपलिंग क्या होता है कि जहां पर फ्लैंज और वेब का जॉइंट होता है वहां पर वेब थोड़ा सा अगर बकल कर जाए या डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेब क्रिपलिंग। आपको इस फिगर में शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ। लेट अस से इफ दिस इज योर फ्लैंज, और यहाँ से ये वेब नीचे जा रहा है, ये आपका जो है अंदर फ्लैंज है। तो फ्लैंज और वेब यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो इनका जंक्शन है, नीचे वाले फ्लैंजेस और वेब, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा वेब डिफॉर्म हो जाए, बीच में से डिफॉर्म नहीं हो रहा है, अगर जो बीच में से डिफॉर्म हो रहा है तो कंप्लीट बकलिंग मानी जाएगी, उसको बोलेंगे वेब की बकलिंग हो रही है, वेब बकलिंग। अगर वो फ्लैंज और वेब के जॉइंट से थोड़ा सा बकल हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेब क्रिपलिंग, या डिस्टर्ब हो रहा है उसको बोलेंगे वेब क्रिपलिंग, राइट। तो ये देखेंगे अगर आप, तो ये बिल्कुल जस्ट इज अकरिंग एट द जॉइंट ऑफ वेब एंड फ्लैंज। तो इसमें भी एक बेरिंग प्लेट हम प्रोवाइड करेंगे लो डिस्पर्जन के लिए। तो जो डिस्पर्जन वेब बकलिंग में तो हम मान रहे थे हाफ ऑफ डेप्थ पे, यहाँ पर हम मानेंगे सिर्फ जस्ट एट दिस जंक्शन, जस्ट बिलो ऑफ दिस जंक्शन। और वो आयस कोड ने कहा है कि आप लेंगे थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस R1, got it, means you have the I section like this. So this is the thickness of flange and this is the curvature of rolled section, this is R1. So this much depth is TF, thickness of flange plus R1.
और इसका जो आप डिस्पर्जन का जो आप एक तरह से मल्टीपल लेंगे दैट या स्लोप ऑफ डिस्पर्जन लेंगे, वो लेंगे आप 1:2.5, दैट इज द स्टैंडर्ड, राइट? तो 2.5 टाइम्स ऑफ द thickness of flange plus r1 is the dispersing the width, that is n1. So total dispersion width is b small b plus 2n1, और एक n1 क्या है? 2.5 टाइम्स ऑफ tf प्लस r1। इस तरह से आप ये n1 निकालेंगे, फिर b निकालेंगे, है ना? और वही b इंटू टी डब्ल्यू एरिया हो जाएगा, एफ आई स्ट्रेस हो जाएगी डिवाइड बाय दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये देगा आपको एफ डब्ल्यू सी, यानी क्रिपलिंग में स्ट्रेंथ, बकलिंग में एफ डब्ल्यू बी, क्रिपलिंग में एफ डब्ल्यू सी। इस तरह से बेसिकली हमें डिज़ाइन करना है। आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है? हमने ब्रीफ थ्योरेटिकल डिज़ाइन देख लिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी वन न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ वी कैन डिज़ाइन द लो शेयर केस फर्स्ट डेफिनेटली, एंड हाउ वी कैन डिज़ाइन द हाई शेयर केस आफ्टर दिस। ओके, तो कुछ नहीं है, इजी है। एक क्लास में लो शेयर केस हो जाएगा, एक क्लास में हाई शेयर केस हो जाएगा। ओके, and then we'll almost finish this unit, right? So thank you class, this is the lecture number 22, I think, right?